Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I'm a psychologist and I'm here to help you out with something that is a little different from what you study every day. Hey, this is not something that you're going to study. This is just a normal conversation that we are going to have. A very important conversation rather, जो हम नहीं करते हैं, जो generally बहुत ज़्यादा ignore हो जाती है, that is mental stress. The mental stress you go through while you are preparing for your exam. एनी एग्जाम इट कुड बी, बट यूपीएससी क्या है, सिविल एग्जाम्स क्या है, बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हमारा करियर डिपेंड करता है ज़्यादा इस चीज़ पे, इसलिए मेंटल स्ट्रेस भी ज़्यादा हो जाता है. बट जस्ट बिकॉज ये हमारे आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा है, जनरली क्या होता है, हम मेंटल स्ट्रेस पे उतना फोकस ही नहीं कर पाते, बिकॉज हमें ऐसा लगता है शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद ज़रूरी नहीं है, या शायद इससे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट वी डोंट रियलाइज कि छोटे छोटे स्टेप से ही वी कैन अचीव आवर गोल एंड वी कैन बिकम सक्सेसफुल ऑफिसर्स. अगर हमारी पूरी बॉडी पे ही ध्यान नहीं होगा तो हम कैसे कुछ अचीव कर पाएंगे. हम अपने हर बॉडी पार्ट पे ध्यान दे देते हैं, बट कई बार हम अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को, अपने माइंड को बहुत इग्नोर कर जाते हैं. वी डोंट रियलाइज कि ओके दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट आवर माइंड इज गोइंग थ्रू, एंड मे बी इफ वी डू समथिंग अबाउट इट, और मे बी इफ वी गेट सम हेल्प, इट विल हेल्प अस आउट इन फ्यूचर एंड इन अ प्रिपरेशन ऑल्सो. वी डोंट रियलाइज इट क्योंकि हमारे से बचपन से ही ऐसा हो रहा है. हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ मेंटल स्ट्रेस को उतना इंपॉर्टेंस या मेंटल प्रॉब्लम्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है. अगर हम बोलते भी हैं तो जनरली हमें सुनने को मिलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल फाइन, इट्स ऑल ओके. बट द थिंग इज इट्स नॉट. Even if you are experiencing anxiety and small things like this, anxiety, stress, sometimes you do require help, because what this help does, it helps you to prepare, to focus better for your exams and to focus better on your studies, right? So we can see how bad the numbers are and how these numbers are increasing every day, because every day we are going through issues, especially during these times, during COVID times. Most of us are stuck in our houses and we don't have the option of going out. We have to work from home or we have to study from home only, and we all know इससे कितनी problems आ सकती हैं या कितनी problems हमें आएंगी, right? Because we are not going out of our houses, right? So we can see clearly that how many people are actually going through mental issues, and what is the availability of the psychologist? Very less, right? So Sleepy Classes came out with this initiative that we are going to help you out in whatever mental issues, or rather whatever you want to talk about. We are here to help you out in every way. So through this presentation, I'm going to tell you about how this counseling is going to help you, and how can you deal with certain things like stress, anxiety, tips for concentration. Everything we are going to talk about in this presentation. Right? First comes anxiety. So anxiety is something जो हम सब deal करते हैं, everyday deal करते हैं. It is something we all go through. So it could be because of anything. हम exams में, when we are preparing for something, or rather anything else also. Generally also in life we go through a lot of anxiety, right? But यहाँ पे हम अपना focus exams पे रखेंगे, right? अब UPSC ही है. इतने time से we all are preparing, and what we have to do to make sure that our focus is in the right direction, right? Anxiety हो जाती है क्यों? क्योंकि बहुत टाइम से आप सब प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सिलेबस है, right? So it is very natural कि आपको ऐसी फीलिंग आने लग जाए, आप एंशियस होने लग जाए कि शायद हमसे नहीं होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा. What should I do about it? So first of all we need to understand that what is exactly causing us the anxiety. क्या सिर्फ हमारी स्टडीज ही हैं जो हमें एंग्जाइटी कॉज कर रही हैं, या कोई और भी दिक्कत है? कोई फैमिली इशू है, कुछ फ्रेंड्स के साथ इशू है, कुछ रिलेशनशिप इशू है? व्हाट इज द रियल इशू बिहाइंड अ एंग्जाइटी, एंड वी नीड टू सॉल्व दैट इशू बिफोर एनीथिंग एल्स, राइट? सो एंड वी ऑल्सो नीड टू रियलाइज कि ओके इन एंग्जाइटी कॉजिंग के ट्रिगर्स क्या हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो इस चीज को और ट्रिगर करती हैं. अगर हम नॉर्मली बैठे हैं तो हम कुछ नहीं, एंग्जाइटी हमें नहीं हो रही है, बट हम ऐसा क्या सोच रहे हैं जिससे वी एंड अप बीइंग एंशियस, राइट? सो इससे क्या होता है, बेसिकली बिकॉज वी आर बीइंग एंशियस, अल्टीमेटली वो हमारी स्टडीज पे इफेक्ट करता है, हमारे फोकस पे इफेक्ट करता है, एंड इट रियली कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग, राइट? सो अभी एंग्जाइटी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डू अ लिटिल प्रॉब्लम सॉल्विंग कि हमारी एग्जैक्ट इशू क्या है एंड हाउ कैन वी डील विद इट, राइट? सेकेंडली एक ये भी है कि हम उस इशू को कितना अपने हिसाब से डील कर सकते हैं. आपको क्या लगता है आप उस इशू को कितना डील कर सकते हैं, आप कितना उस इशू के बारे में सोच सकते हैं, राइट? अब जब कुछ चीज मेरे हाथ में ही नहीं है, देयर इज नथिंग इन माय हैंड अबाउट द इशू,
मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम दे दिया है, अब मेरा रिजल्ट आना है, रिजल्ट आने तक तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना, स्टिल आई एम बीइंग एंशियस अबाउट इट, उसका तो कोई फायदा नहीं है, वो तो हमारे हाथ में ही नहीं है, राइट। तो पहले हमने ये क्लियर करना है कि हमारे हाथ में कितना है, राइट। जितना हमारे हाथ में है हमने उस हिसाब से ही अपने आप को अपना फोकस बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ऐसा लग रहा है हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग एंशियस और गेटिंग ट्राइंग टू थिंक अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट रियली पॉसिबल, राइट। हम बैठ के बस सोचे जा रहे हैं विच ऑब्वियसली कॉजेज अ लॉट ऑफ इश्यूज, राइट, क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ सोच रहे हैं बैठ के, राइट। सो वी नीड टू रियलाइज कि हमें ये सब नहीं करना है। और अभी आगे मैं आपको और भी बहुत चीजें बताऊंगी दैट आर बेसिकली रिलेटेड टू एंजाइटी एंड दैट विल रियली हेल्प यू, राइट। So next comes stress. स्ट्रेस एज वी ऑल नो सबको होता है, किसी ना किसी चीज की वजह से होता है। कई बार बहुत ज्यादा एंजाइटी जब हमें चलती रहती है तब भी हमें स्ट्रेस हो जाता है, राइट। सो हाउ कैन वी हेल्प विद स्ट्रेस, व्हाट कॉजेज स्ट्रेस और कितना हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेस भी होता है। यस, देयर इज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दैट वी थिंक दैट इज एक्चुअली अ लिटिल रिक्वायर्ड। अगर हम बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं होंगे, हम बिल्कुल ऐसे करेंगे जी हमें तो सब आता है, तो उससे तो होगा नहीं, राइट। वी वोंट बी एबल टू फोकस, वी वोंट बी एबल टू गिव आवर बेस्ट, राइट। सो वी नीड टू रियलाइज दैट ओके, इफ वी have to really give our best shot, we need to keep our stress at bay. हमें इतना कम अमाउंट में स्ट्रेस रखना है कि वो हमारे फोकस में तो हेल्प करे, बट हमें इतना लेवल ना क्रॉस कर ले कि वो डिस्ट्रेस में चेंज हो जाए। दैट मीन्स कि वो हमें इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाए हमें कि हम सारा टाइम बस यही सोच रहे हैं कि अरे यार ये हो गया तो, अरे यार वो हो गया तो। व्हाट इट इज डूइंग बेसिकली, ना हम पढ़ पा रहे हैं ना हम कुछ सोच पा रहे हैं, हम सिर्फ यही सोचे जा रहे हैं कि यार ये स्ट्रेस और हो गया तो, स्ट्रेस और हो गया तो क्या करेंगे, right? So we need to realize that this stress should be in a limited manner. एक लाइन से ऊपर नहीं जाना चाहिए एंड वी शुड ऑल्सो रियलाइज क्योंकि कब वो उस लाइन से ऊपर जा रहा है। अब ये हम कैसे रियलाइज करें, इसको रियलाइज करना बड़ा आसान है। जब हमें ऐसा लगे हमारी डेली एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज जो हैं वो उस स्ट्रेस से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही हैं, हम रोजमर्रा के काम भी कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज हम सारा टाइम उसी चीज के आसपास घूमे जा रहे हैं, ठीक है। दैट विल रियली इफेक्ट आवर स्टडीज ऑल्सो एंड आवर कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो। हम फोकस कर ही नहीं पाएंगे बिकॉज हमारा सारा ध्यान इसी चीज पे कि अरे यार नहीं हुआ तो, अरे यार नहीं कर पाए तो, अरे यार ये रह गया तो, अरे यार वो रह गया तो। उससे क्या होगा, बेसिकली हम सिर्फ इस चीज के बारे में सोचे जा रहे हैं कि हमारे साथ रह गया, व्हाट इफ वी आर नॉट एबल टू डू दिस, व्हाट इफ वी आर नॉट एबल टू डू दैट, रादर देन फोकसिंग ऑन व्हाट वी हैव राइट नाउ. So for stress, obviously we all know, mental exercises, yoga, meditation, that really helps with stress. It does. Working out really helps. Having a proper diet, a very healthy diet really helps. हम कई बार इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि अरे यार डाइट से थोड़ी कुछ होता है। बिल्कुल होता है। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फिजिकल वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द रीजन बीइंग आप सारा टाइम बैठ के पढ़ रहे हैं, सो बेसिकली इवन इफ मेंटली यू आर गेटिंग स्ट्रेस्ड, आप फिजिकली यू आर नॉट मूविंग योर बॉडी, फिजिकली यू आर नॉट गेटिंग any workout. So उससे क्या हो रहा है, physically your body is still a little active rather than your mind. Your mind is not active. Why? Your mind is stressed. Your mind is tired. The reason being आप पूरा दिन आपने पढ़ाई करी है, but because आप एक ही जगह बैठे रहे, आपकी body physically move ही नहीं करी, physically कुछ हुआ ही नहीं, तो उससे क्या हो रहा है, जो आपकी body है वो tired ही नहीं हो रही है. We end up not sleeping रात को because of this, because our body is not physically tired. It requires some kind of workout, yoga, meditation or anything rather you enjoy, any hobby that you like doing, anything would be amazing if you guys do any of this, right? What else? We have to go through like a problem focused solving issue. So क्या होता है जब हम बहुत problem focused होते हैं, जैसे for example कि हमें पता है हमें इस वजह से stress हो रहा है, हम पहले reason figure out करेंगे, जैसे हमने पहले वाले उसमें किया, anxiety में हमने reason figure out किया, same way में हम stress में भी reason figure out करेंगे कि हमें किस चीज की वजह से stress हो रहा है. Once we figure that out, उसके बाद हम ये try करेंगे कि okay अब इस चीज का solution क्या है, right? How we are going to go through this, how we are going to solve this, ठीक है. तो ये जो चीज होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. हम एक बार वी नो व्हाट द रीजन इज एंड व्हाट वी नो वी रियली how the problem is going to be solved, stress would automatically be less. Plus we also need to realize that okay these are the problems that are causing stress, and because ultimately एक लूप होल सा बन जाता है. कैसे, हम एक स्ट्रेस ले जा रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उस वजह से क्योंकि हमने स्ट्रेस लिया होगा, और अब हम स्ट्रेस ले रहे हैं इसलिए पढ़ाई नहीं कर रहे तो हमें और स्ट्रेस हो रहा है कि अरे यार हमने तो पढ़ाई नहीं करी, राइट. हम नाउ में नहीं जी रहे हैं, हम या तो फ्यूचर में जी रहे हैं या हम पास्ट में जी रहे हैं, राइट. हमें आज में जीना है. आज इज व्हाट दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम क्या पढ़ाई
पढ़ाई कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज का टॉपिक क्या है, आज हमने कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट कम्स टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तो बड़ा ही जरूरी है, नॉट इवन इन एग्जाम्स, इन एनीथिंग एल्स, इन जनरली इन लाइफ ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने टाइम ढंग से मैनेज कर लिया तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू डू बेटर इन लाइफ, यू विल बी एबल टू अचीव बेटर एंड आप अपने टाइम का प्रॉपर यूज कर पाएंगे। देखिए अभी आपके लिए पढ़ाई भी जरूरी है, आपके लिए सोना भी जरूरी है, आपके लिए खाना भी जरूरी है, और आपके लिए जो आपकी लेजर एक्टिविटीज है, जो आपकी हॉबीज हैं, दैट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो हमारे लिए सब करना है, पर हमारे पास है तो 24 घंटे। सो वी नीड टू फिगर इट आउट कि हम कैसे काम करें कि उन्हीं 24 घंटों में वी आर एबल टू मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट वी वांट। अब क्या होता है, मैं बहुत जनरली सुनती हूँ, जब मैंने लास्ट टाइम कॉल्स ली थी, काउंसलिंग सेशंस लिए थे, मैंने बहुत सुना था कि मैम हम टाइम टेबल बनाते हैं, वो हमसे फॉलो नहीं हो पाता है, 1 हफ्ता करते हैं, 2 हफ्ते करते हैं, उसके बाद होता नहीं है। द रीजन बीइंग हमने एक टाइम टेबल बना लिया है और हम ये ट्राई कर रहे हैं कि पूरा दिन, पूरा साल, पूरा महीना वही एक टाइम टेबल से हम काम चला लें। ऐसे तो होगा नहीं ना, एवरी डे इज डिफरेंट, एवरी आवर इज डिफरेंट। रादर अभी मेरा कुछ करने का मन कर रहा है, कल शायद मेरा ना करे, आज मैं बड़ी मोटिवेटेड हूँ, कल शायद मैं नहीं हूँ, फिर भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो एक ही टाइम टेबल जो है वो हम पूरा साल चला लें। इससे क्या हो रहा है, मैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस खुद ही बना रही हूँ कि मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगी, मैं खुद ही हो जाएगा। एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं हो रही है, ये बड़ी ही अनरियलिस्टिक सी अप्रोच है, राइट। सो हाउ कैन वी मेक इट मोर रियलिस्टिक? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जो हमारे लिए वर्क कर रहा है, रादर देन कि ये उसके लिए वर्क कर रहा था, ये उधर के लिए वर्क कर रहा था, ये उस टॉपर ने बोला। हाँ जरूर वीडियोस बहुत हेल्प करती हैं टॉपर्स की, यस, बट टेक टिप्स एंड बिट्स फ्रॉम इट। अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ मैं कंप्लीटली वो टॉपर ने जो बोला है सब ले लूं, वो तो चलेगा नहीं। उसका दिमाग कुछ और है, उसका IQ लेवल कुछ और है, उसका EQ लेवल कुछ और है, उसकी सिचुएशंस भी कुछ और है। हो सकता है यू गाइस आर वर्किंग, है ना, हो सकता है आप में से कुछ में घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, और ये भी हो सकता है कई लोग ऐसे भी हो जिनको मेनली दे हैव अ डिफरेंट चॉइस, मतलब आपको कुछ और पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, उनको कुछ और पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, राइट। तो अगर आप उन्हीं के हिसाब से चलेंगे तो उससे क्या होएगा, बेसिकली वी आर सेटिंग अप आवरसेल्व्स फॉर फेलियर। हम ऑलरेडी, और फिर क्या होता है ना, जैसे आज मैंने ट्राई कर लिया, आज मैंने कुछ अचीव कर लिया, मैंने अपना टाइम टेबल पूरा फॉलो कर लिया, कल कर लिया, परसों कर लिया, हो सकता है उससे नेक्स्ट डे मेरे में इतनी मोटिवेशन ही ना हो कि मैं सेम टाइम टेबल फॉलो कर पाऊं, है ना। फिर भी क्या हो रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं सेम टाइम टेबल फॉलो करूं, उससे क्या हो रहा है कि बेसिकली मैं सेम टाइम टेबल फॉलो करने का ट्राई करूंगी पर मेरे से होगा नहीं, और उससे क्या होगा, बिकॉज मेरे से होगा नहीं, मैं स्ट्रेस्ड आउट हो जाऊंगी, सब कुछ सेम होगा, एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, क्यों, क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रही हूँ, मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली वी नीड टू फिगर इट आउट कि हमें rather than making a proper timetable, try to make goals कि इस वीक में I need to achieve these topics, right, and try to make timetables that work for you rather every day, or like once a week, or like once a month, or twice a month, thrice a month, whatever you feel works best for you, rather than following somebody. You have your own thing, right? You are your own being, you are unique, so you need to understand that your mind is unique. You will have your unique time management skills also, and you will have your unique timetable also, right? So you need to understand that, okay, these are the topics I have to do in a week, and now I have to figure it out which I can do, rather every day I can make a new timetable ki okay, what I feel like doing today, these are the topics I have to complete, okay, let me do, I don't feel really, मतलब कई दिन ऐसे होते हैं ना, हमारा मन नहीं करता है बहुत कुछ करने का, हमारा मन नहीं करता है पढ़ाई करने का, या कई दिन ऐसे होते हैं we are very motivated कि आज तो पता नहीं सारा ही आज ही कर लेना है। तो उससे क्या हो रहा है, बेसिकली हम लोग जिस दिन हमें ऐसा लग रहा है हमारी मोटिवेशन ज्यादा है, ट्राई टू डू थिंग्स दैट यू फील कि अच्छा ओके ये मैं आज कर लूंगा तो इट विल हेल्प मी आउट, ठीक है, आज मेरा माइंड अच्छा है, आज मेरा मूड भी सही है, आज सिचुएशंस भी सही है, आज मेरे पास टाइम भी है। तो उससे क्या हो रहा है, आई विल डू अ लिटिल डिफिकल्ट टॉपिक्स, द थिंग्स आई फाइंड डिफिकल्ट, द थिंग्स I find difficult, that is also something। हो सकता है मेरे को भाई ज्योग्राफी बहुत इजी लगती है, आपको हिस्ट्री बहुत इजी लगती है ना, तो मेरा वो भी डिफरेंसेस आ गए, वो भी चेंजेस आ गए। हर टॉपिक पे आपका जो अपने हिसाब से जो व्हाट यू फील, वो उसी हिसाब से आपको वो चीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू फील कि मेरे को ज्योग्राफी मुश्किल लगता है, तो आज मेरे पास टाइम ज्यादा है, लेट मी टेक मोर ज्योग्राफी के टॉपिक्स, राइट, लेट मी ट्राई टू कंप्लीट ज्योग्राफी मोर टुडे बिकॉज आई नो माई मूड इज राइट।
करेक्ट, यस, दिस इज द थिंग दैट यू कैन फॉलो एंड इट कैन हेल्प यू आउट। ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि एग्जाम के पास हम ये चीज नहीं कर सकते, बट व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ अ लॉन्गर अप्रोच, जब हम एकदम शुरू से कर रहे हैं, जब हमें पता है हमारे एग्जाम में अभी है टाइम 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, रादर 1 साल, तो उसमें हम ये अप्रोच यूज करेंगे तो इट विल हेल्प अस आउट मोर, बिकॉज हम हर दिन का यूज कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि अगर आज हमारी कॉन्सेंट्रेशन 30 या 40% ही है तो हमने 70% का टास्क दे दिया है और हम ट्राई कर रहे हैं कि हम कर लें। अगर वो उससे क्या हो रहा है, जो 30-40% हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है हम उसको भी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमसे होगा ही नहीं, एंड वी आर सेटिंग ourselves up for failure, right? So we need to understand that okay, this is the thing that we have to do. अब ये जो है ये 30% मेरे पास concentration है, तो rather let me just try to do something which requires less concentration only, rather than doing something which requires more concentration. Okay? So next we have टिप्स टू इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन। फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है। हम फोकस करते हैं, कई बार क्या होता है, करते करते हमें ऐसा लगता है हमारा ध्यान कहीं इधर उधर ही चला गया है। मैक्सिमम टाइम्स आई डोंट 30 to 45 minutes इज व्हाट द मैक्सिमम टाइम स्पैन आई फील एनीवन कैन फोकस। उसके बाद हमारा ध्यान इधर उधर जाता ही है, कुछ ना कुछ होता ही है। वैसे तो 10-15 मिनट्स में भी कई बार हो जाता है, 5-10 मिनट्स में भी कई बार हो जाता है। इसको फिगर आउट करने के लिए एक बड़ी इजी सी एक्सरसाइज है, मैं आपको बताती हूँ। वट एवर यू आर रीडिंग, put an alarm clock with you, right? Make sure that you're reading it for 30 minutes, like a 30-minute rough topic, right? And then put an alarm for 5 minutes. हर 5 मिनट में अलार्म लगाइए। 5 मिनट जैसे ही होंगे आप ये फिगर आउट करिए कि आपका ध्यान कितना इधर उधर गया, है ना? आपने कितनी बार इधर उधर की चीजें सोची, क्या क्या सोचा, है ना? देन यू विल अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि आपका फोकस कैसा है, आपका फोकस कितना अच्छा है और आपका फोकस कितना खराब है, कितना हमें उस चीज पे इंप्रूव करने की जरूरत है। धीरे धीरे ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ओके दिस इज द फोकस आई नीड एंड दिस इज द फोकस आई हैव। इफ यू ऑलरेडी हैविंग अ गुड फोकस दैट इज वेरी नाइस, यू कैन स्टिल इंप्रूव। ऑब्वियसली वी ऑल आर देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट, वी ऑल कैन इंप्रूव, हम सब इंप्रूव कर सकते हैं, बट वी नीड टू रियलाइज दैट ओके दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव। कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है हम स्कोर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमें रियलाइज ही नहीं होता है कि मे बी हमारा फोकस हमारा मेन इशू है, कि हम ढंग से किसी चीज पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे, राइट? अब पहले कॉन्सेंट्रेशन के टिप्स। पहले तो हमने ये फिगर आउट करना है, जैसे हम बोलते हैं ना हमारी आम भाषा में कि हम यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और यू आर अ नाइट पर्सन। आई फील दैट इज अ वेरी राइट थिंग टू थिंक अबाउट, है ना? कई बार क्या होता है, कई लोगों की सिचुएशन ही ऐसी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप काम करते हैं, आप पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे हैं, आपके पास सुबह शायद पढ़ने का टाइम ही नहीं है ना? आपके पास सिर्फ रात को ही पढ़ने का टाइम है, तो यू हैव टू फिगर आउट अ वे जिससे आप रात को ढंग से कॉन्सेंट्रेट भी कर पाए और आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो भी आप ऐसे लगाएं कि आपका रात को ढंग से हो पाए, है ना? ऐसे करें कि आपको ढंग की नींद भी मिल पाए और आप कर भी पाए अपना सारा पढ़ाई जो आपने उस दिन की करनी है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का बेसिक, जैसे हम बहुत सारी कंसंट्रेशन गेम्स भी होती हैं, जैसे हम कहते हैं अगर हम पेंटिंग करें, डूडलिंग करें, या हम ब्रेन एक्सरसाइजेस करें, फॉर एग्जांपल सुडोकू और एनी अदर वर्ड गेम्स दैट यू डू, दैट रियली हेल्प, बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर इंप्रूविंग योर कंसंट्रेशन। या बड़ा ईजी है, कई बार आप किसी भी अपने फ्रेंड या अपने कजन के साथ ले लीजिए एंड ट्राई टू प्ले विद द बॉल। व्हाट यू आर डूइंग इज व्हेन यू आर ट्राइंग टू कैच द बॉल, यू आर बेसिकली इंप्रूविंग योर कंसंट्रेशन। दैट रियली हेल्प्स, बिकॉज आप अपना कंसंट्रेशन इंप्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं, कैसे? उस बॉल को कैच करके। सो उससे क्या हो रहा है, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन द बॉल, बेसिकली यू आर फोकसिंग योर हेल्पिंग योर माइंड टू फोकस ऑन समथिंग, अ पर्टिकुलर थिंग, राइट? सेम विद you need to focus on your studies also, right? In a very similar way. What else we can do? When it comes to concentration, we need to realize that जब वो फोकस होता है ना, जैसे हमने दिन और रात की बात करी, कई लोग क्या करते हैं, दे आर मोर ऑफ अ मॉर्निंग पर्सन कि मैम मैं 5 बजे उठ जाऊँ ना तो मेरे से बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है, या मैम मेरे से रात को बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है। ट्राई टू फिगर इट आउट, आपसे अच्छी पढ़ाई कब होती है ये आपको फिगर आउट करना बड़ा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कई लोग बोलते हैं मैम अगर मैं सुबह 5 बजे उठूँ ना तो मेरे से जो सुबह की पढ़ाई होती है ना वो मेरे से बहुत अच्छी होती है। तब मैं रेकमेंड करती हूँ कि हाँ जी, जो आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं वो आप सुबह करने का ट्राई करिए। क्यों? क्योंकि आपका माइंड फ्रेश है, मे बी आप उस टाइम आपको बेस्ट लगता है पढ़ना, करेक्ट? तो आप उस टाइम पढ़ने का ट्राई करिए, दैट विल रियली हेल्प यू आउट, है ना? कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं मैम अगर हम रात को पढ़ते हैं ना, बिकॉज हमारे पास टाइम ही रात का है, तो दैट रियली हेल्प्स, है ना? कि रात को पढ़ने से हमारी कंसंट्रेशन भी इंप्रूव हो जाती है और हमारी जो हमारे पास जो टाइम होता है, हमें कोई जल्दी नहीं होती, इसलिए हम रात को शांति होती है, आसपास लोग सो रहे होते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, उससे बहुत हेल्प होती है ना? तो आप उस हिसाब से ट्राई टू फिगर आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू, है ना? आप अपनी बॉडी को और अपनी बॉडी की प्रॉब्लम्स को या अपनी मेंटल
मेंटल इश्यूज को अपना एनिमी मत सोचिए, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, क्यों हो जा रहा है, ये मत सोचिए. ट्राई टू बी फ्रेंडली विद देम, ट्राई टू फिगर आउट ओके दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई एम हैविंग, हाउ एम आई गोइंग टू फिगर इट आउट. ये प्रॉब्लम्स हैं, कैसे फिगर आउट करूं, दैट इज व्हाट रियली हेल्प्स. करेक्ट. देन कम्स मोटिवेशन तो आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग थ्रू दिस इशू. मोटिवेशन होता नहीं है, मिलता नहीं है. व्हाट वी शुड डू अबाउट मोटिवेशन, कैसे करें कि हमारा जो मोटिवेशन है वो सेम रहे. जनरली क्या होता है, जब हम यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू करते हैं हमें बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि हम तो अभी बस आईपीएस आईएएस सब ऑफिसर्स हम बन के ही रहेंगे. बट व्हाट हैपेंस इज धीरे धीरे विद टाइम हमारा जो मोटिवेशन है वो कम होता रहता है. द रीजन बीइंग कि हर रोज उसी चीज के लिए पढ़ाई करनी है, हर रोज पढ़ाई करनी है. यू हैव अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स आल्सो व्हिच यू आर फेसिंग. अब हम कैसे ऐसे करें कि हमारा जो मोटिवेशन है वो मेंटेन रहे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इजी एक्सरसाइज है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. स्टार्ट राइटिंग लेटर्स टू योर सेल्फ. राइट, जैसे मैंने बहुत सुना है लोग बुलेटिन बोर्ड्स पे अपने लिखते हैं कि दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग इफ यू डू दैट कि व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाई यू वांट टू अचीव. व्हाई, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई यू वांट टू बिकम समथिंग, व्हाई यू वांट टू डू दिस, व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग for this. If you know your whys, it will be very easy for you to stay motivated. आपको क्यों करना है ये, आपको क्यों जाना है, आपको क्यों एग्जाम देना है, आपको क्या क्या चाहिए लाइफ में जिसकी वजह से आपको ये करना है, आपको whether it is better life or whatever your reason is जिसकी वजह से आपको ये करना है. अगर आप ये चीज ध्यान में रखेंगे, अगर आप ये चीज याद रखेंगे कि आपका why क्या है, तो उससे क्या होगा that you will be motivated for a longer period of time. Okay? देन कम्स कि हमें जैसे मोटिवेशन है, अब हमें मोटिवेशन मेंटेन कैसे रखनी है. तो जैसे लेटर राइटिंग मैंने बोला, जिस दिन आपको लग रहा है कि आज तो भाई मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, आज तो मेरा अलग ही मोटिवेशन लेवल है और आज मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होने वाली है, राइट अ लेटर टू योरसेल्फ फॉर दैट डे. जब आपको ऐसा लगे कि जिस दिन आपका मोटिवेशन कम होगा या जिस दिन आपका मोटिवेशन उतना नहीं होगा जितना आपको चाहिए. करेक्ट. इससे क्या होगा बेसिकली, यू विल बी सी, आप जितना अपने आप को अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता. आई कैन हेल्प यू आउट, देयर आर लॉट ऑफ साइकोलॉजिस्ट दैट कैन हेल्प यू आउट, बट द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू मोटिवेट योरसेल्फ बिकॉज आपको अपना सबसे ज्यादा पता है. राइट. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फिगर आउट कि ओके दिस इज द लेटर आई एम गोइंग टू राइट टू माई सेल्फ फॉर द डे व्हेन आई फील आई एम नॉट मोटिवेटेड. राइट अबाउट एवरीथिंग, राइट अबाउट योर ड्रीम्स, अबाउट योर एस्पिरेशंस, अबाउट हाउ वेल यू वांट टू अचीव इन लाइफ, अबाउट हाउ हार्ड यू आर वर्किंग. ट्राई टू मोटिवेट योरसेल्फ. उससे क्या होगा बेसिकली, आप अपने आप को ही मोटिवेट कर रहे हैं. एंड द डे यू फील यू आर नॉट मोटिवेटेड, व्हेन यू विल रीड दैट लेटर यू विल अंडरस्टैंड कि अरे हाँ यार दीज आर द प्रॉब्लम्स आई हैड, एंड योर माइंड विल रिमेंबर व्हाट यू वर फीलिंग दैट डे एंड दैट विल हेल्प यू आउट. चाहे वो मैं कहती हूँ 1-2-3 घंटे के लिए ही आपकी मदद करे, बट करेगा तो सही. दैट 3 hours आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी आवर इज इंपॉर्टेंट इन दिस प्रिपरेशन. राइट. देन कम्स इमोशनल स्टेबिलिटी. Even if we are going really well, we are studying really well and we are, doing everything really well, emotional stability is very important because ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई के अलावा आपकी लाइफ में कुछ और होगा नहीं. There are a lot of things that you are going through, which could cause a lot of issues, right? Whether it could be family, whether it could be your relationships, whether it could be your friendships, anything. And emotional stability is how well do you manage these things? How well do you manage your difficult situations, right? कई बार क्या होता है हम लोगों से मैनेज ही नहीं होती, हम मैनेज ही नहीं कर पाते, हम जितना मर्जी ट्राई कर लें, है ना. तो उससे क्या हो रहा है बेसिकली, बिकॉज हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस, हम लोग बेसिकली अपना वो कर ही नहीं पाए, हम ना इमोशंस मैनेज कर पा रहे हैं. आवर माइंड इज स्ट्रेस्ड बिकॉज वी आर नॉट एबल टू, वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन बट वी आर नॉट एबल टू मैनेज इट, वी आर नॉट एबल टू गेट बैक टू व्हाट वी वांट टू, राइट. वी आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपर्ली. उससे क्या हो रहा है, सब इफेक्ट हो रहा है. तो इमोशनल स्टेबिलिटी हम कैसे लाएं? इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ओके व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड हाउ आई शुड सॉल्व दिस थिंग. व्हाट इज, ट्राई टू बी अ लिटिल प्रैक्टिकल कि अच्छा ओके दीज आर द थिंग्स दैट आई एम गोइंग थ्रू, ये प्रॉब्लम्स हैं, how should I figure it out, है ना. once you figure that out you will be able to could have a control on your emotions. you need to understand, you need to keep in your mind that you are most important for yourself before anybody else, before anything else. आप अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने बारे में ही नहीं सोचेंगे तो आप किसी के बारे में नहीं सोच सकते. अगर आप अपनी खुशी को नहीं देखेंगे तो आप किसी को खुशी प्रोवाइड भी नहीं कर सकते. आप किसी को एक इमोशनल स्टेबिलिटी पहले आपको खुद अचीव करनी पड़ेगी ताकि आपको इस सिचुएशन संभाल पाए, ताकि आप अपनी फैमिली संभाल पाए. एंड इट इज
very important for when you are becoming an officer or rather just becoming a good human being. Emotional stability is something that is very important. देखो हमारी लाइफ कभी एक स्मूथ सेल तो होने नहीं वाली है. It was always going to be a roller coaster. कभी कुछ प्रॉब्लम्स है, कभी कुछ इश्यूज हैं, राइट? अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में कभी कोई इश्यूज ही नहीं आएंगे, कभी कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगे, तो वो गलत एक्सपेक्टेशंस है, उनको रखने का कोई फायदा ही नहीं है. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वी आर सेटिंग अप आवरसेल्व्स फॉर समथिंग that will ultimately be harmful for us only, right? So हमें ये समझना पड़ेगा कि हम क्या ऐसा करें, हम क्या अपने आप को, हम अपने इमोशंस को कैसे संभालें, या हम कैसे इतना इमोशनली स्टेबल हो जाएं कि वी आर एबल टू फोकस ऑन आवर स्टडीज ऑल्सो. बिकॉज क्या है, अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे, अपने इमोशंस को नहीं संभाल पाएंगे, वो हर जगह आएगा. एवरीवेयर you will be able to see it if you are not able to manage your emotions. Right? So you need to understand that you have to keep yourself ahead of everybody so that you can keep yourself and everybody around you happy. अगर आप खुद ही खुश नहीं है, even if you have a human being in your life or even if they are your parents, there's your partner, whatever, अगर आप वही उसी को खुश रखना चाहते हैं तो पहले आपको खुद अच्छे से खुश होना पड़ेगा, है ना? We can't do it without keeping ourselves happy, and therefore you will see that अगर आप खुश हैं तो आपको अपनी दिनों में भी दिखेगा कि आपके दिन भी अच्छे जा रहे हैं, आप फोकस भी कर पा रहे हैं, आप कॉन्सेंट्रेट भी कर पा रहे हैं, बिकॉज यू आर focusing on one thing at a time. आपका दिमाग इधर उधर नहीं जा रहा है. Correct? Next. So next is basically dealing with failure. UPSC is something a lot of people give these exams and there will be a lot of you जिनका first attempt नहीं है, जिन्होंने पहले बहुत attempts दिए हैं और maybe they were not able to achieve it. Right? Failure हो जाता है बहुत आसानी से. हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी एग्जाम से रिलेटेड नहीं तो किसी ना किसी चीज से रिलेटेड फेलियर जरूर वी डिड एक्सपीरियंस, है ना? सो हाउ डू वी डील विद फेलियर? अगर हम सिर्फ एग्जाम अप्रोच के हिसाब से ही बात करें सो इट इज वेरी क्लियर. हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू डील विद इट कि हो गया है हमारे साथ ये, बट वी ऑल्सो नीड टू फोकस कि अब हमने उसी में ही नहीं अटके रह जाना है, हमने अपने पास्ट में ही नहीं अटके रह जाना है, क्योंकि वो तो अब हो गया है, राइट? हम अपने पास्ट के चक्कर में अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर नहीं खराब करेंगे. बिकॉज अगर हमारा पास्ट के बारे में ही सोचते रहेंगे, हम प्रेजेंट में पढ़ेंगे नहीं, फ्यूचर में हमारा जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो भी वी विल एंड अप फेलिंग इट, राइट? सो व्हाट डू वी नीड टू डू टू डील विद द फेलियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड ओके आई डिड फेल, इट्स ओके, आई प्रिपेयर्ड फॉर इट, मे बी माई अप्रोच वाज़न्ट द करेक्ट वन, राइट? जो आपकी स्ट्रैटेजी थी, जो आपकी अप्रोच थी, मे बी वो आपके लिए वर्क नहीं करी, इसीलिए यू फेल्ड, है ना? तो अब हम इसके लिए कैसे काम करें? ट्राई टू थिंक अबाउट, जैसे जब भी आपने कोई भी एग्जाम दिया हो, फॉर एग्जाम्पल जिसमें you scored really well, right? What was your approach you were using during that time? I'm not saying कि obviously अगर आपने 10th में बहुत अच्छा स्कोर किया है, exactly same pattern you can't follow, but take tips and bits from it कि अच्छा ओके मैंने ये किया था तो it helped me out, कि मैं सुबह उठी थी तो मेरी बड़ी अच्छी पढ़ाई हुई थी, या 10th में मैं ये कर रही थी ना तो उससे I was able to score better. आप अपने दिमाग में ये बिठाइए कि अच्छा ओके maybe I wasn't able to score what I wanted to, or maybe I failed, but that doesn't mean कि मेरे को फ्यूचर में भी फेलियर ही लिखा है. हमने वंस अपने दिमाग में ये बात बिठा ली, हम कभी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ओके व्हाट रियली वर्क्स फॉर अस, कि ठीक है हमने हो गया है, हमने फेलियर एक्सपीरियंस कर लिया है, ठीक है अब हम कैसे आगे बढ़ें ताकि हम ये फेलियर दोबारा एक्सपीरियंस ना करें. व्हाट अप्रोच शुड वी यूज एंड हाउ वी कैन डील विद दिस. व्हाट अप्रोचेज आई यूज्ड ड्यूरिंग द एग्जाम्स, I succeeded, or during the exams I scored really well. What was the approach I was using during that time? Okay, if that really helped me out, maybe if I use some kind of similar approaches, it will help me out in this time as well. Plus, we have to make sure कि हम उसी चीज में अटके ना रह जाएं, हम अपने फेलियर में अटके ना रह जाएं, हम अपने फेलियर से सीखें कि ठीक है हो गया, ठीक है मतलब मे बी माई प्रिपरेशन वॉजंट राइट, करेक्ट. अगर मैं और प्रिपेयर करूंगा, इफ आई एम एबल टू स्कोर मच, आई विल बी एबल टू स्कोर मच बेटर. अगर मैं और ढंग से प्रिपेयर करके जाऊंगा, मे बी मेरी प्रिपरेशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट आई कैन डू इट, आई नो माई एबिलिटीज. बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, डोंट लूज कॉन्फिडेंस एंड स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स कि अरे यार उसने तो कर लिया, उससे तो हो गया. हर किसी का दिमाग अलग है, हर किसी की सिचुएशन अलग है. यू कांट एक्सपेक्ट कि उसने कर लिया या वो आपसे कम पढ़ रहा था फिर भी उसने कर लिया. अगर हम ये करने बैठ गए फिर तो हम सिर्फ लाइफ में कंपैरिजन ही करते रह जाएंगे and we will never be able to achieve something that we really want to.
राइट. देन कम्स पर्सनल एंड करियर ग्रोथ. ऑब्वियसली अगर हम ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, दिस इज रादर मोर लाइक अबाउट योर ग्रोथ. आप पूरा जब इन स्लाइड्स को फिर से देखेंगे, यू विल रियलाइज आपकी अपने आप ही पर्सनल ग्रोथ भी होगी और करियर ग्रोथ भी होगी, एज यू विल बी एबल टू फोकस बेटर एंड यू विल बी एबल टू अचीव वॉट एवर यू वॉन्टेड टू अचीव, प्लस विद हेल्पिंग अचीव योर बेटर इमोशंस और हैविंग बेटर इमोशनल स्टेबिलिटी. उससे क्या होगा, आपकी एक पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है. करेक्ट. विच इज वेरी इंपॉर्टेंट whenever it comes to studying also. हम कभी कभी अपने इमोशंस पे उतना ध्यान नहीं देते, उससे क्या होता है, हमारी कंसंट्रेशन और हमारा फोकस बहुत इफेक्ट होते हैं. वी डोंट रियलाइज जब भी हमारे आसपास कोई दिक्कत हो रही हो, हमारी फैमिलीज में कोई दिक्कत हो रही हो, क्या होता है, वी जस्ट एंड अप गेटिंग वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड वी जस्ट डोंट रियलाइज कि यार पढ़ा क्यों नहीं जा रहा है, हो क्यों नहीं रहा है. उससे क्या हो रहा है, बेसिकली आप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि यार मेरे इमोशंस इस टाइम इस स्टेज पे हैं दैट आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट. सो यू हैव टू डील विद योर इमोशंस फर्स्ट maturely, and then only you will be able to focus better for your exams, for your studies. Correct. So I'm pretty sure I covered a lot of topics and a lot of you guys would have a lot of questions and a lot of things that you really want to do. So these are basically the details. These are the courses that we are offering, and batch 2 is open. The enrollment has started. So whenever you will be enrolling for any of these courses, you will get 2 free sessions with me free. They would be telephonic sessions. We can discuss your issues and we can discuss everything that you are going through, and we can try to come up with some solution. We can try to solve it. Rather, I will give you more one-to-one sessions, and you can tell me what you really are going through these 2 sessions, and it can maybe help you out in future and in achieving your goals. Have a very good day and goodbye. Good luck.